Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is dividend policy. And in that, we will continue the topic that is sums on the Walters model. Now, in earlier videos, I explain about what the Walter model says. Okay, then the three categories of firm and so on. Okay, so what the Walter model says? The Walter model says that the dividend policy affect value of the firm. Clear? Now, by comparing R and K, that is relationship between R and K. R is what? Rate of return on the firm's investment. And the K is what? Cost of capital, or we can say equity capitalization, or the cost, or we can say the return which is expected by the shareholders. So in relationship between R and K, जो वॉल्टर्स है उसने एक्सप्लेन किया कि हाउ डिविडेंड पॉलिसी और हाउ डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ द शेयर और द वैल्यू ऑफ द फर्म. Okay, now by comparing R and K, Walter model categorize the firm into three category, that is growing firm, declining firm and the normal firm. How the growing firm is identified? When R is exceed than K, यानी rate of return on the firm investment is greater than the rate which is expected by the shareholder. Okay, so this is the case of growing firm. And for a growing firm, the optimum payout ratio is what? 0%. Clear? Second is what? Declining firm. Declining firm क्या बोलता है कि when R is lesser than K, यानी rate of return on the firm investment is less than what the rate is expected by the shareholder. Okay, so in this case, the optimum payout ratio is what? 100%. सब दे देना चाहिए shareholders को, so that shareholders can invest the money in another project and they can earn more. And normal firm, when R is equal to K, and the rate of return on the firm investment is equal to the rate which is expected by the shareholders. So in this case, no one is optimum payout ratio, or we can say any payout ratio is what optimum, because the price of the share will not be affected. क्लियर. फिर बाद में हम लोग ने थ्री सम्स कैलकुलेट किया था, दैट इज सम्स ऑन ग्रोइंग फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म एंड दी नॉर्मल फर्म, और हम लोग ने वो टैली भी कर दिया कि ग्रोइंग फर्म में 0% ग्रोइंग फर्म है, तो ग्रोइंग फर्म के लिए 0% पे प्राइस ऑफ द शेयर मैक्सिमम आता था. जैसे आप पे आउट रेशियो बढ़ाते गए, प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या हो गई? कम होती गई. क्लियर. डिक्लाइनिंग फर्म में क्या हुआ? डिक्लाइनिंग फर्म में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100% है, यानी 100% पे प्राइस ऑफ द शेयर मैक्सिमम आई थी, और जैसे आपने पे आउट कम करते गए प्राइस ऑफ द शेयर्स भी कम होती गई थी. एंड नॉर्मल फॉर्म में तो क्या होता है कि आप पे आउट बढ़ाओ या पे आउट कम करो, प्राइस ऑफ द शेयर्स के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द फोर्थ सम. नाउ इन सम the earning per share of the company are given, that is what? 10 rupees. Okay, so यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में डालते हैं EPS is what? Rupees 10. Then after, the equity capitalization rate is 10%, and equity capitalization rate means what? K. Clear? K कितना है? 10%. Now इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिटेन्ड अर्निंग. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग मतलब R is what? 20%. Okay, so this information is given in sums. EPS is rupees 10, K is 10%, and R is what? 20%. Now using Walters formula, यानी क्लियर कट बोल दिया, Walters formula अप्लाई करना है और ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है. A, what should be the optimum payout ratio of the company? B, what should be the price of the share at optimum payout ratio? And C, how shall this price be affected if different payout bracket में say 80% were employed? Okay, so in sum EPS is given, K is given and R is given. Okay, so first answer दे दे E. What should be the optimum payout ratio of the company? यानी आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछा कि what should be the optimum payout ratio of the company. ना मैंने आपको बोल दिया है
कि वॉल्टर्स मॉडल में आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ करना है? आर एंड के। आर एंड के को देख के आपको डिटरमाइन करना है कि आपकी फर्म ग्रोइंग फर्म है, आपकी फर्म डिक्लाइनिंग फर्म है और क्या नॉर्मल फर्म है। बाय कंपेयरिंग आर एंड के वी हैव टू डिसाइड कि फर्म इज नॉर्मल फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म और ग्रोइंग फर्म, एंड देन आफ्टर वी टेक अ डिसीजन कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा। क्लियर? सो आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी। सो पहले तो आपको ऑप्टिमम पे आउट रेशियो का आंसर देने से पहले आपको क्लियर कट आंसर देना पड़ेगा कि ये फर्म कौन से टाइप की है। क्लियर? तो कैसे कैसे आपको डिटरमाइन करना है कौन सी टाइप की फर्म है? बाय कंपेयरिंग आर एंड के। सो हियर आंसर क्या होगा? कंक्लूजन, सिंस R that is 20% is greater than K, दिख रहा है ना? 20% is greater than 10%. So which type of firm it is? It is a case of growing firm. ये कौन सी फर्म हुई? It is a case of growing firm. Clear? And ग्रोइंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा? टेल मी। दस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज व्हाट? दस ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर द कंपनी विल बी 0%. आया समझ में? क्यों 0%? सो इट इज आर इज ग्रेटर देन के हुआ, दैट इज 20% इज ग्रेटर देन 10%. सो इट इज अ केस ऑफ विच फर्म? इट इज अ केस ऑफ ग्रोइंग फर्म, एंड फॉर द ग्रोइंग फर्म द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होता है? 0%. क्यों? यानी जो आर है दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिटेन्ड अर्निंग, वो 20% है, एंड वी एज द इन्वेस्टर्स हम लोग ने कितना एक्सपेक्ट किया? 10%. यानी कंपनी आपको 20% देगी और हम लोग ने क्या एक्सपेक्ट किया था? 10%. सो इट इज बेटर कि कंपनी शेयर होल्डर्स को कुछ भी ना दे। कंपनी क्या करना चाहिए? जितना भी प्रॉफिट है ना, वो हर एक प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बिकॉज वो री इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना दे रही है? 20% है। सो कुछ भी नहीं देना चाहिए। सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर द ग्रोइंग कंपनी विल बी 0%. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आंसर ए. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन ए. क्लियर? नाउ बी में क्या पूछा? What should be the price of share at optimum payout ratio? So आपने A में optimum payout ratio क्या डिटरमाइन किया? 0%, because it is a growing firm. So आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला? What should be the price of share at optimum payout ratio? That means what? We have to calculate the price of share at 0%. So B में आंसर क्या आएगा? Price of shares according to Walters model, price of the shares at the rate of 0% payout. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस ऑफ द शेयर. क्लियर? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? आपको याद करने के लिए बोला था. सो P इज व्हाट? D प्लस R अपॉन K इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन के ई. ओके, सो ये फॉर्मूला तो आपको कैसे भी करके याद रखना ही रखना है. सो फॉर्मूला इज व्हाट? डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ब्रैकेट ई माइनस डी अपॉन के ई. क्लियर? नाउ अभी आपको प्राइस ऑफ द शेयर्स कितने परसेंटेज पे कैलकुलेट करना है? 0% पे. मैंने आपको बोला था डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है? 0% है. ओके, एंड पे आउट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ईपीएस के ऊपर. सो आपको डी क्या आएगा? आपका डी क्या आएगा? डी डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है? ईपीएस के ऊपर. ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो. ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो. ओके, सो ईपीएस कितना है? 10 और पे आउट रेशियो कितना लेना है?
0%. So payout ratio is what? 0. So 10 का 0% क्या होता है? 0. So D क्या बनेगा आपका? 0. प्लस R का R क्या होगा? 20% यानी 0.20 डिवाइडेड बाई के क्या होगा? 0.10 इंटू ब्रैकेट EPS E क्या है? 10 रुपीज माइनस D क्या है? 0 अपॉन के दैट इज 0.10. सो 0 का 0 रहेगा प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10 कर दो. सो 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10. सो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 0 10 रहेगा डिवाइडेड बाई 0.10. सो 0 प्लस 2 10. सो 0 का 0 प्लस 2 इंटू 10 20 अपॉन 0.10. सो 0 प्लस 20 अपॉन 0.10. सो आंसर क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 0.10 200. सो 200 रुपीज प्राइस ऑफ द शेयर. कितने पे आउट पे? 0% पे. अभी आप सोचो, अगर आपने फर्स्ट का ही आंसर रॉन्ग दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया कि आपको पता ही नहीं चला कौन सा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होगा. सो फर्स्ट का आंसर रॉन्ग दिया. सो बट वैसे आपका बी का आंसर भी क्या आएगा? रॉन्ग ही आएगा. सो बी केयरफुल. ओके. सो कैसे डिटरमाइन करना है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर द कंपनी? बाय कंपेयरिंग आर एंड के. बाय कंपेयरिंग आर एंड के आपको डिटरमाइन करना है कि आर इज लेस देन के ही है, आर इज ग्रेटर देन के ही है, या आर इक्वल टू के ही है. तो जो केसेस में आर इज ग्रेटर देन के, सो which kind of firm it is? It is a case of growing firm or growing company, and for a growing company the optimum payout ratio क्या होता है? 0%. clear? now 0% पे बी में आपने क्वेश्चन पूछा what should be the price of the share at optimum payout ratio. so आपने प्राइस कैलकुलेट किया by with the help of formula according to Walters model. okay. so आपको मेन डिविडेंड प्राइस ऑफ द शेयर एट 0% पे आउट पर कैलकुलेट करना था, दैट इज डिविडेंड पे आउट. सो डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ईपीएस के ऊपर. सो ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो होता है ना. सो ईपीएस तो 10 है, उसका 0% है, तो आंसर क्या आएगा? 0. सो डिविडेंड क्या होगा? 0. बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है सब सम्स में दी होती है, आपको खाली कैलकुलेट करना, डिविजन मल्टीप्लीकेशन ये सब. ओके. सो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या आया? ₹200 आया. क्लियर? अभी नाउ सी क्वेश्चन. हाउ शैल दिस प्राइस बी अफेक्टेड इफ डिफरेंट पे आउट से 80% वर एम्प्लॉयड? सो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राइस कैसे चेंज होगी, प्राइस कैसे अफेक्ट होगी अगर आप 80% पे आउट यूज करोगे. क्लियर? सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी सी आंसर, दैट इज प्राइस ऑफ द शेयर एट 80%. क्लियर? सो सी आंसर, सी का क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है. क्वेश्चन क्या है? हाउ शैल द प्राइस बी अफेक्टेड इफ डिफरेंट पे आउट से 80% वर एम्प्लॉयड. सबको तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर बाद में कंक्लूजन डालना पड़ेगा. सो फर्स्ट इज व्हाट? प्राइस ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ 80% पे आउट. क्लियर? सो फॉर्मूला तो सेम ही कि P इज व्हाट? D प्लस R अपॉन K इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन K. तो फॉर्मूला सेम रहेगा. प्राइस ऑफ द शेयर एट 80%. सो 80% क्या? डिविडेंड पे आउट. मैंने आपको बोला डिविडेंड पे आउट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? EPS के ऊपर. सो डिविडेंड इज व्हाट? EPS इंटू पे आउट. सो EPS कितना है? 10 रुपीज इंटू पे आउट कितना बोला? 80%. सो 10 इंटू 80%. सो 10 का 80% आंसर क्या आएगा? 8 रुपीज आएगा. 10 इंटू 80%, सॉरी 10 इंटू 80%. सो 8 रुपीज आएगा.
सो डिविडेंड क्या होगा आपका 8 रुपीज. क्लियर. सभी सब ये वैल्यू फॉर्मूला में डालना है. सो डी इज व्हाट 8 प्लस आर सेम. आर कितना है 0.20. के कितना है 0.10. ईपीएस कितना है 10 रुपीज माइनस डी कितना है 8 रुपीज अपॉन के 0.10. सो 8 का 8 रहेगा प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10. हम लोग ने आगे भी कर दिया ना. 0.20 डिवाइडेड बाई 0.10 कितना आता है 2 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 8 2. क्लियर. डिवाइडेड बाई 0.10. सो 8 का 8 रहेगा. पहले क्या ऑलवेज बॉड मास रूल यूज करना है. कुछ पहले प्लस कर देंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा. सो पहले क्या करना है ब्रैकेट ऑफ करके मल्टीप्लाई कर देना है. सो 8 का 8 रहेगा प्लस 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 0.10. सो 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 0.10. सो आंसर क्या आएगा ₹120. क्लियर. सो ये तो आपका खाली कैलकुलेशन पार्ट हुआ. अभी तो आपको मेन कंक्लूजन डालना है. सो कंक्लूजन कैसे डालोगे कि हाउ शैल प्राइस बी अफेक्टेड इफ द डिफरेंट पे आउट रेशियो वर एम्प्लॉयड. ओके. सो कंक्लूजन क्या होगा. हेंस हियर व्हाट हैपन हियर और हेंस द प्राइस ऑफ शेयर क्या हो गई. द प्राइस ऑफ शेयर विल डिक्रीज. हुई ना. ₹200 से कितना हो गया ₹120. सो हियर प्राइस ऑफ द शेयर विल डिक्रीजेस इफ डिफरेंट पे आउट रेशियो is employed from optimum payout ratio. यानी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो से कुछ डिफरेंट पे आउट रेशियो यूज किया तो प्राइस क्या हो गई. प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीज हो गई. इफ द डिफरेंट पे आउट रेशियो दैट इज 80% यूज किया था. डिफरेंट पे आउट रेशियो दैट इज 80% यूज किया था इज एम्प्लॉयड फ्रॉम द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. क्लियर. वाई. बिकॉज it is a case of which type of firm. It is a case of growing firm. Okay. And for the growing firm optimum payout ratio क्या होता है 0%. Okay. So growing firm है. So what happen, the price ऑफ शेयर डिक्रीज हो जाती है. द प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीजेस एज पे आउट रेशियो इंक्रीजेस. क्लियर. सो हमारा 0% था. फिर हम लोग ने 80% इंक्रीज किया तो प्राइस ऑफ द शेयर्स क्या हो गई डिक्रीज हो गई. बिकॉज ग्रोइंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होता है 0%. सो हाउ शेल the price be affected if the different payout ratio were employed. So price को क्या affect हुआ. price decrease हो गई. the price of the share will decreases if the different payout ratio were employed from the optimum payout ratio because it is a case of growing firm. It is a case of growing firm. So growing firm में क्या होता है price of the share decrease हो जाती है as the payout ratio increases. So this is a full solution of question number 4. Clear. Now next session we will again continue our sums. Take care.